We are Siamese, if you please. Is that even politically correct anymore? No, that I don't think was politically correct then. Yeah. It was very racist. Disney's gone through a bunch of their stuff and altered stuff because Disney's got some pretty freaking racist stuff. Yeah. You ever see Peter Pan? There's a song called What Makes the Red Man Red. They're not even trying to hide it. Hey, welcome back to our Stupid Reactions, Idiots. I'm Corbin. I Can Fly. Also, Song of the South. Yeah. They don't even have that one on Disney Plus. Which is interesting. They have that ride at Disneyland, but I think it's going away now. It's definitely going away. Isn't it? Yeah. It's a shame because Disney tries to bury that one. they really do. You can't find Song of the South anywhere. Because you know the song Zippity doo dah, zippity. that's about a slave just being happy being a slave. It's Uncle Remus. Not good. The Tales of Song of the South and the Tales of Uncle Remus, he's a slave who's happy to be a slave. Yeah. Not great. Anyways, on this tangent. But today, what are we doing, Rick? We're going to squeeze the milk out of cows. Yeah, we are. Today, it's the top 10 most beautiful train journeys in India. Oh, cool. One thing we didn't get to do, sadly, even though we had a very short trip and a very jam-packed trip. Next time, we'd love to take a train, ride from hijack a train. Yeah, from one place that we are, just like Jesse James, to travel to wherever we're going next, because we know it's such a common thing, and also they have really cool trains as well. You've seen several videos with train stuff. But this is the most beautiful, and I'm sure we're gonna see. Did you ride a train in Ireland? No, because I was only there 4 days, so I was trying to get everywhere as fast as I could. So I think trains and subways are like, if you can and you've got the time, in certain cities especially, like if you go to New York, ride the subway. Yeah. It's just a cool experience. Here we go. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका अपने चैनल टॉप 10 पर दिल से स्वागत करते हैं। Like a game show. ऐसा होगा अगर आपको आपके रोजमर्रा की स्ट्रेस भरी जिंदगी से थोड़ी आजादी मिले और आपको एक खूबसूरत रेल यात्रा पर ले जाया जाए। Great shot. हम आज आपके लिए भारत के 10 ऐसे सुंदर रेल मार्ग लाए हैं जिनमें प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इनका अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आज आपको एक खूबसूरत सफर पर। तो सबसे पहले आता है कोंकण रेलवे। यह रेल मुंबई से मैंगलोर के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। ई श्रीधरन मेट्रो मैन द्वारा रखा गया था। ये भारत में निर्माण सबसे कठिन रेल मार्ग था। कोंकण रेलवे 3 राज्यों कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को जोड़ती है। पहाड़ों, नदियों, सुरंगों, पुलों आदि से भरे हुए खूबसूरत क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इसमें कई पुल और सुरंगें हैं जो देश के किसी अन्य हिस्से की तुलना में कहीं अधिक हैं। यदि आप एक रेलवे प्रशंसक हैं और साथ ही एक प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपको ये यात्रा लेनी चाहिए। और मुंबई से मैंगलोर तक पूरी यात्रा के लिए लगभग 20 घंटे लगेंगे, जो कि 741 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2. नीलगिरी मेट्टुपलायम ऊटी। हजार मिमी की होने के नाते नीलगिरी एक्सप्रेस एक लोकप्रिय और एकमात्र खिलौना ट्रेन है जो इन भारतीय रेलवे के प्राकृतिक मार्गों पर चलती है। इसमें मेट्टुपलायम से उद्गम मंडलम ऊटी तक 46 किलोमीटर की दूरी तय होती है। इस ट्रेन पर 16 सुरंग, 208 कर्व्स और 250 पुल पार करते हैं। शुरुआत से गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन में 408 घंटे लगते हैं। 1908 से चल रहा है नीलगिरी पैसेंजर अभी भी मेट्टुपलायम से ऊटी तक भाप इंजन पर चलता है। चूंकि ट्रेन नीलगिरी, माउंटेन, मोटी पाइन, ओक और नीलगिरी के जंगलों, झुकाव, वक्र और सुरंगों पर चलती है। ये एशिया के सबसे तेज ट्रैक के साथ 8.33% के अधिकतम ढाल के साथ चलता है। नीलगिरी यात्री कलर, एड्रली, हिलग्रोव, कटेरी, रन्नीमेरे, कटेरी, कुनूर और लवदेवे जैसे स्टेशनों के माध्यम से करीब 5 घंटे ढलान तक 26 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करता है।
क्या आप जानते हैं कि दिल से फिल्म का गीत छैया छैया यहीं पर शूट किया गया था? 3. तमिलनाडु रामेश्वरम। तमिलनाडु से रामेश्वरम तक में 407 किलोमीटर की दूरी है, जिसे तय करने में आपको समय लगता है और उस समय में आप इनके बीच के रास्ते का लुत्फ उठाते हैं। इसे महासागर की घुसपैठ यात्रा से भी जाना जाता है। पंबन पुल पर तमिलनाडु से रामेश्वरम तक ट्रेन छवि, स्रोत, रोमांच और रोमांच के अलावा तमिलनाडु में मंडपी से ट्रेन यात्रा पर पंबन द्वीप पर रामेश्वरम शांत और शांति उत्पन्न करती है। यह निश्चित रूप से शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ भारतीय ट्रेन यात्राओं में से एक है। भारत में सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में से एक। ये भारत के दूसरे सबसे लंबे पुल पालक स्ट्रेट से गुजरता है, जो एकमात्र मार्ग है जो मुख्य भूमि भारत को पंबन द्वीप से जोड़ता है। 4. कजरत लोनावला। कजरत से लोनावला के बीच 28 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेन के रूप में करजत जगह से गुजरती है। यह उदार पश्चिमी घाटों के इलाकों में चली जाती है, जो उनकी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। बरसात के मौसम के दौरान यह रेल मार्ग झरने वाले झरने और कई स्पष्ट धाराओं के साथ और अधिक सुंदर हो जाता है। पृष्ठभूमि में पहाड़ियों के साथ मोटी हरी वनस्पति आपकी ट्रेन की खिड़की से एक सुंदर दृश्य बनाती है। बंदर हिल की चढ़ाई यात्रा से पहले ट्रेन ठाकुरवाड़ी गांव के माध्यम से क्रिस क्रॉस में खंडाला से गुजरती है। कजरत रेल शुरू होते हुए खंडाला से होकर लोनावला पहुंचती है। 5. टॉय ट्रेन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। नई जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे भारत के सबसे पुराने रेलवे में से एक है, जो 1880 के आसपास बनाया गया था। ये यात्रा रेलवे के माध्यम से होगी, जो 2 फुट संकीर्ण गेज है और लूप लाइन प्रौद्योगिकी और जिग-जैग पर आधारित है। इस रेलवे में नई जलपाईगुड़ी से 88 किलोमीटर की दूरी तय होती है और पूरे दौरे में 12 स्टेशनों के साथ दार्जिलिंग में समाप्त होता है। ट्रेनें मुख्य रूप से दिन में निर्धारित की जाती हैं। भारत में सभी पर्वत रेलवे का सबसे पुराना खिलौना ट्रेन भी एक विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 1999 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। रेलवे शाखा लूप्स इस रेलवे की एक विशेष विशेषता है। सबसे लोकप्रिय बटासिया लूप है, जो शानदार दृश्य पेश करता है। दार्जिलिंग शहर और बर्फ के साथ एक स्पष्ट दिन और माउंट कंचनजुंगा की सुंदरता को देखा जा सकता है। निश्चित रूप से आप इस शांत वातावरण के साथ इस ट्रेन की सवारी का आनंद लेना चाहेंगे। 6. कालका शिमला। यदि आप सुरमई घाटियों, खड़े रास्ते और धुंधले घास के मैदानों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप ट्रेन में शिमला यात्रा करें। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना जाने वाला छोटा खिलौना ट्रेन कालका से शुरू होता है और 102 सुरंगों के माध्यम से 96 किलोमीटर यात्रा करता है। बड़ोग में स्थित सबसे लंबी सुरंग, 82 पुल, गहरे घाटियां, खड़ी वक्र, रोलिंग झुकाव, देवदार के जंगलों, पाइन और ब्लू ओक जैसी चीजों से होकर गुजरती है। शिवालिक, कालका शिमला, हिमालय रानी, रेल मोटर और शिवालिक रानी जैसे कुछ ट्रेन इस मार्ग पर हैं। ये यात्रा वास्तव में मजेदार है, लेकिन धीमी गति से ट्रेन गर्मी की राजधानी तक पहुंचने के लिए धर्मपुर, सोलन, कंडाघाट, तारादेवी, सालोग्रा और समर हिल के स्टेशनों के माध्यम से लयबद्ध रूप से ढलान पर चढ़ जाती है। कालका शिमला रेलवे 2.6 फीट नैरो गेज रेलवे होने के नाते कालका और शिमला के बीच की दूरी को कवर करती है। यह सर्वश्रेष्ठ भारतीय रेलवे प्राकृतिक मार्गों में से एक है। ये सबसे अच्छी उत्तर भारतीय ट्रेन यात्राओं में से एक है। 7. नीलाम्बुर शोरनूर। नीलाम्बर दक्षिणी रेलवे के पलक्कड़ डिवीजन के नियंत्रण में शोरनूर रेलवे लाइन केरल में सबसे कम ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों में से एक है, जिसमें 46 किलोमीटर का एक ट्रैक है। कई यात्री ट्रेनों और एक एक्सप्रेस ट्रेन वर्तमान में इस सुरमई और पर्यावरण पर संचालित होती है। दोस्ताना मार्ग दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पहाड़ियों, घाटियों और धान के खेतों में रहने वाले इलाके में बारिश होती है। केरल में मानसून पर्यटन का आनंद लेने और अनुभव करने के लिए इस मार्ग पर एक ट्रेन यात्रा सबसे अच्छा विकल्प है। सागौन पेड़ इस सुंदर मार्ग का मुख्य आकर्षण है। रेल लाइन मलप्पुरम जिले के क्षेत्र से गुजरती है और ट्रैक के दोनों किनारों पर सागौन जंगलों की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली का अनुभव कर सकते हैं। इस सदाबहार मार्ग पर 4 नदियां व कई धाराएं हैं।
नीलांबुर के पास प्रमुख पर्यटक आकर्षण जैसे टीक संग्रहालय, दुनिया में सबसे लंबा सागौन पेड़, अदयान पारा जल फॉल्स, कैनोली प्लॉट, पुल लटका, नेद मुमायम, बांगलाव कुन्नू, कोई पारा झरने, बंसुरा मंदिर व न्याम्बलम है। 8. कश्मीर रेलवे, जम्मू उधमपुर। कश्मीर रेलवे भारत की सबसे खूबसूरत रेलवे लाइनों में से एक है, जो 20 सुरंगों और पर 100 पुलों से गुजरती है, जो सबसे ऊंचे भारतीय रेलवे पुल निर्माणाधीन की मेजबानी भी करती है। कश्मीर रेलवे लाइन भारतीय रेल प्रणाली की सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे परियोजना है, जो ठंड के अत्यधिक तापमान में प्रमुख भूकंप क्षेत्र, उच्च ऊंचाई पर्वत पास और इलाकों को पार करती है। इस यात्रा में आपको घाटी नदियां, शिवालिक रेंज जैसी प्राकृतिक सौंदर्य का सुख प्राप्त होगा, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। 9. रेगिस्तान रानी, जोधपुर जैसलमेर। जोधपुर से जैसलमेर में लगभग 285 किलोमीटर की दूरी है। रेगिस्तान रानी एक विशिष्ट पर्यटक टूरिस्ट रेल है। यह प्रतापी रेल राजस्थान में दौड़ती है और वहाँ की संस्कृति को दर्शाती है, जैसे रेगिस्तान की खूबसूरत ऊंट, जैसलमेर का किला, बाजार, पुरानी हवेलियां और वहाँ के लोगों के रहन सहन का तरीका, मेहरानगढ़ का किला तथा इत्यादि। भारतीय रेलवे ने इस अद्भुत रेल की घोषणा अगस्त 2000 में की थी। इस रेल को अंदर से राजकीय दृश्य के साथ बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। राजा महाराजाओं के जैसे ही भोजन मिलता है और राजाओं के पहरेदारों की पोशाकों में यहाँ पर कर्मचारी यात्रियों की सेवा करते हैं। यह अरावली रेंज से होकर भारत के रेगिस्तानों में से गुजरती है। तो बताइए, है ना मजेदार? 10. कोरापुट रायगढ़। कोरापुट रायगढ़ लाइन या लोकप्रिय KR लाइन किरंडुल कोथावल्स रेलवे लाइन का एक ब्रांच है। रायगढ़ रेलवे लाइन के कोरापुट अंधेरे और घने जंगल, मीडोज, पानी गिरने और टेरेस वाली घाटियों से गुजरती है। रायगढ़ क्षेत्र आदिवासी ओडिशा की भूमि पर सुंदर सौंदर्य और विरासत के लिए जाना जाता है, जो एक स्वर्ग है, जबकि रायगढ़ समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर है। कोरापुट लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर है। जब ट्रेन कोरापुट से रायगढ़ तक जाती है तो डाउनहिल का दृश्य सुंदर दिखता है। घोड़े के जूते के आकार के वक्र और मोटी जंगलों की आकर्षण जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये है भारत के टॉप 10 ऐसे रेलवे मार्ग जिन पर आप जरूर जाना चाहेंगे। हमारी शीर्ष 10 शानदार ट्रेन सवारी वाली वीडियो को देखना ना भूलें। Yeah, no, I wish America had, and there's many reasons why we don't. Auto industry, huge, is being one of the big reasons why, because they bought out a lot of the people that were planning on building the railway and the, like in LA specifically, I think it was Ford and a couple of the car companies, we had this big plan to have a big metro thing just like New York. Correct. In the early 1900s. And it was the car industry. The car industry bought it out because they thought it would eat into their profits. Yeah, and America, now we have the worst traffic. Yeah, and America was built on the railway system. I mean, the expansion from east to west and boom towns that popped up along the railway systems and the expansion of the West were what made America when we expanded. And yes, it was the automobile and the auto industry that just really, we still have them, but they're not. No, we have like one train industry. It's called the Amtrak, and it's just, I mean, it's nice, but it's just one train system basically, pretty much, unfortunately. But and we do have little metro rails here, but it's nothing. So maybe one day. But yeah, I've obviously we've heard a bunch about India's trains and all the different stuff that places you can go. But I'd go on every one of these. Oh yeah, 100%. Because obviously, what we know of the Indian topography, it would be just gorgeous to look at. Just like if I was in Ireland, it would be gorgeous going to train anywhere. Great way to see the land and a lot of the land in a fast amount of time, but slow enough to be really cool. Like to next time to make that a trip. Like let's go to India and do those 10 trains. Yeah, that'd be amazing. Next time we go to India, whenever COVID allows, in the year 2023, who knows? Hopefully not. But you know, it's bleak right now. But whenever we do, like maybe that one from, because we're going to probably start in Mumbai and then we're going to go south. Go south basically, and hit, you know, Kerala, Goa, Tamil Nadu, all those places down south.
But there's one beautiful train from Mumbai down. You can go as far from to Goa to somewhere else. After that, sounds good might to me. Be a good option. I'm sure a lot of you know the good trains to go on. Obviously, whenever we actually plan it out, we'll be able to see better. But trains are something that you have to have time for. Exactly. We've got to plan it. We jam-packed our trip. Yeah. We shouldn't have been able to do all we did in the short amount of time. We were exhausted. Well, our poor people that were hosting us. Yes. I felt so bad sometimes because they wanted to hang out. And I know. And they were so gracious, especially because we spent most of our time on the trip in Mumbai, and that was toward the end of the trip. But so often our hearts were to spend time with them, but we were fried, and they just were gracious. Yeah, because we even canceled something with them. Yeah. Straight up canceled something because we were just too exhausted. Yeah, because we get there, we're already jet lagged from our 22-hour plane flight. Yeah. And then we get up, we have I think we had 5 or 6 hours of sleep the first night. Yeah. Right? Yeah. We got up, we had South Indian breakfast in Delhi. And went straight to a meet and greet that day. And you all loved it. Yeah. That was your favorite video of the trip. Although I will say, if you want to do something really fun, do yourself a favor. My first trip to India was when I didn't get my e-visa to properly enter the country. And I was supposed to spend a 6-day trip in Calcutta, and it turned into a 3-day trip. Yeah, so do a flight into India, and get adjusted to the time. You had 37-hour flight. And fly back. Yeah, I did, because I had 4 planes. Long layovers. Exactly. I made sure we had very short. It was beautiful. It was much more lovely. But let us know which train ride whenever we do come back, COVID permitting, because I don't think we're still allowed in India. Next year. I don't think any country has lifted their restrictions for America. Last I checked, we were still only allowed into 22 countries in the world. Yeah. And I wouldn't be surprised if it shrunk from there. It's shrinking because they're exploding all over right now. Yeah, everybody's exploding. There's no reason anybody should be allowing anybody in right now. We're going to see a baby boom in a couple years. Because people are at home with nothing to do. In 9 months. Yeah. Well, actually, some of them already might be coming out. Coming out now. COVID babies. Anyways, let us know which train we should take next time we come down below.